Good morning, students. In previous classes, we have studied about the basic strength of the ammonia, how it is affected by the inductive effect, solvation energy, and steric hindrance. Due to cumulative effect of inductive effect, solvation effect, and steric hindrance, the order of the basicity of the ammonia is changed. Now, for methyl containing amine, secondary amine is more basic than primary amine, and primary amine is more basic than tertiary amine, which is more basic than ammonia. Let us recall the aryl amines versus ammonia. Now, can you tell me which one will be more basic, whether aryl amine or ammonia? Anurag? Arylamine, sir. No. Arylamine, in the case of the arylamine, there is electron withdrawing group. It will withdraw electron from the amino group, which will decrease the electron density at nitrogen atom. Consequently, the availability of lone pair of electron at nitrogen in the case of the arylamine is lower. Hence, the electron donating tendency will decrease. Consequently, it will be less basic than ammonia, whereas in the case of ammonia, only hydrogen atom is present. Therefore, their electronegativity of hydrogen is lower than that of nitrogen. Consequently, some electron density will be present at nitrogen, which will donate the electron pair to the nitrogen. Consequently, the basicity of ammonia is greater than that of the arylamine. Now, in the case of aniline, it is orthopara-directing. It engaged in resonance and it pumps electron towards the benzene ring, due to which it increases the electron density at ortho and para position. Its resonating structure is 5. इसमें आप देख रहे हैं कि 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड इट विल बी मोर स्टेबल, जिसमें जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होता है. while when the aniline will receive one hydrogen and when it will donate the lone pair of electron to proton, it will be anilinium ion and its resonating structure is only 2. It is less stable. Thus we can say that after showing the basicity of the aniline, the stability decreases, consequently it is less basic. Once again, in the case of aniline, that is aryl amine, when it will accept the proton, when it will donate the lone pair of electron to proton, its stability decreases because it has only 2 resonating structure, while in the case of aniline it has 5 resonating structure, which is more stable. Thus we can say that anilinium ion, due to formation of anilinium ion by aniline, its basicity decreases. It is only due to the presence of aryl group, which is electron accepting group. Now, basic strength in the case, basic strength further is affected by electron withdrawing group or electron releasing group. When electron releasing group, electron pumping groups are present on the benzene ring, consequently it will increase electron density on nitrogen atom. Therefore, their basic strength increases, and these are generally single bond containing groups, while those groups which are double bonded, which are electron accepting group, electron withdrawing group, except halogen, which is also electron accepting, electron withdrawing group, due to high electronegativity, they will decrease the electron density from the system, from the nitrogen. Consequently, their basic strength decreases. तो सबसे ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रेंथ आपको सेकेंडरी अमीन का हो गया, तब प्राइमरी अमीन, तब अमोनिया. अमोनिया से भी कम होता है एनिलीन का, क्योंकि जब एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है तो वह अनस्टेबल हो जाता है. अनस्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली 2 ही है, जबकि एनिलीन में बल्कि ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है एनिलीनियम आयन. आफ्टर शोइंग द बेसिक कैरेक्टर, इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेज. दस वी कैन से द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एनिलीन इज लोअर देन दैट ऑफ द अमीन. नाउ अल्काइलेशन. ना, व्हाट इज अल्काइलेशन? जहां पर देखो एशन लग गया, समझ जाओ कि उस ग्रुप का वहां पर किसी चीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है. अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन. मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन. हैलोजिनेशन हैलोजन का इंट्रोडक्शन. ठीक है. नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन. सल्फोनेशन सल्फोनिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन. तो कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन होता है. जिस चीज का इंट्रोडक्शन एशन लग जाए, समझो कि वहां पर इंट्रोडक्शन हो रहा है. दिस इज अल्काइलेशन, दैट मींस देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप. तो देख लो इस रिएक्शन को कैसे हम समझेंगे, या कैसे हम लोग भूल गए रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो देख लो.
जैसे देख लो, एल्काइल आयोडाइड है, ये तुम्हारा माइनस पार्ट है, ये तुम्हारा प्लस पार्ट है। अमीन में नाइट्रोजन प्लस पार्ट होता है, नाइट्रोजन आपका माइनस पार्ट होता है। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, बस इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप इसको इंटरचेंज कर जाओ। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप ले लो तुम, और इस ग्रुप पर कौन सा तुम्हारा चला जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव चला जाएगा, C2H5 चला जाएगा। तो देखो C2H5 आ गया, 2 ठो हो गया, पहले एक था अब 2 आ गया तुम्हारा, एक हाइड्रोजन बच गया, ये H और I निकल के HI में बदल गया, मतलब कि सेकेंडरी अमीन में बदल गया। अल्काइलेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन, एंड व्हेन द अल्काइल हाइलाइड, दैट इज अल्काइल आयोडाइड विल बी लार्जर, then again the secondary amine will react with ethyl or alkyl iodide. Suppose another molecule of ethyl iodide is also present, then it will be ionized, it contains negative charge, and it is positive part, this is positive part and this is negative part. This iodine and hydrogen will be escape out in the form of Hi. Now C2H5 will attack at this negative portion, that means at nitrogen to ethyl group, where R is equal to ethyl group na, will be formed, thus tertiary amine is obtained. अब फर्दर अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें तो क्वाटरनरी अमीन भी मिल जाएगा, ठीक है, वो आप रिएक्शन देख लीजिए। फिर से एक बार मैं उसको रिकॉल करा रहा हूँ। ये मिथाइल अमीन हो गया, मिथाइल अमीन इज ट्रीटेड विद द मिथाइल ब्रोमाइड ना, देन सेकेंडरी अमीन विल बी फॉर्म्ड व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज फर्दर ट्रीटेड विद दिस सेकेंडरी अमीन, इट इज कन्वर्टेड इनटू द टर्शियरी अमीन, ठीक है। अभी भी इस पर देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फिर 1 मोलिक्यूल अगर हम लोग थर्ड मोलिक्यूल CH3Br का ले आए तो देखो ये तुम्हारा माइनस पार्ट हो गया, ये प्लस पार्ट हो गया। दिस प्लस पार्ट विल एक्सेप्ट the donated lone pair of electron by the nitrogen of tertiary amine, thus quaternary ammonium salt is formed. Since the lone pair of electron is donated to methyl group, it will get positive charge and there is bromide and there will be association ना, और solution में इस तरह से दोनों रहेगा, और इसी को हम लोग quaternary ammonium salt कहते हैं, ठीक है। तो ये quaternary ammonium salt मिल गया। अगर उसी तरह से हम लोग एनिलीन ले लेते, एरोमेटिक अमीन ले लेते, तो देखो ये तुम्हारा माइनस पार्ट था, ये तुम्हारा प्लस पार्ट है, हाइड्रोजन तुम्हारा प्लस पार्ट हो गया, नाइट्रोजन ये तुम्हारा माइनस पार्ट हो गया। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यहाँ अटैच कर दो, इस CH3 को ले जा करके नाइट्रोजन पर दे दो, ठीक है। यहाँ पर आ गया तुम्हारा ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर तुम्हारा अटैक करेगा। तो देखो ये नाइट्रोजन था, इस पर CH3 आ गया, पहले से नहीं, यहाँ पर देखो एक CH3 आ गया। अब यहाँ से I यानी ये निगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से हट जाएगा, देखो माइनस HI निकल गया तुम्हारा, ठीक है। तो एक CH3 जाके लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच गया, यानी कि सेकेंडरी अमीन मिल गया, ठीक है। फिर इसका सेकेंड मोलिकुल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करा दो, तो इसका हाइड्रोजन तुम्हारा ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये नाइट्रोजन तुम्हारा नेगेटिव पार्ट हो गया, ये तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, ये कार्बन तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट हो गया। अपोजिट चार्जेज अटैच कर दो, CH3 को उठाकर नाइट्रोजन पर रख दो, 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, देखो यही ग्रुप बन गया। यहाँ से H और यहाँ से I और यहाँ से H दोनों रिमूव हो गया, माइनस HI निकल गया, टर्शियरी अमीन मिल गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट मोलिकुल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करा दो, तो ये नेगेटिव पार्ट, ये तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस नाइट्रोजन एटम, it will donate lone pair of electron to this methyl group to form this quaternary ammonium ion, ठीक है। लेकिन माइनस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप कर गया, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज donated to CH3 group, so that there will be interaction between this positive charge iodide ion, और इस तरह से सॉल्यूशन में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपका बन गया। तो ये अल्काइलेशन है, क्या है, अल्काइलेशन। इसी को हम लोग बेंजोइलेशन भी करा सकते थे। यहाँ तो हम लोग जैसे एलिफेटिक अल्काइल आयोडाइड ले लिए, एलिफेटिक आयोडाइड ले रहे हैं, अल्काइल आयोडाइड, ऐसा भी तो हो सकता था कि एराइल हाइलाइड ले लेते या बेंजोइल ग्रुप ले लेते, फिर द बेंजोइल ग्रुप एराइल आयोडाइड लेते तो रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि आयोडीन और कार्बन के बीच में तुम्हारा पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, विच इज इस समय स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर होता है, उससे जल्दी टूटता नहीं, टूटेगा नहीं तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा तो बॉन्ड केमिकल रिएक्शन वहां पर हुआ नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि बेंजोइल हाइलाइड का इंट्रोडक्शन हो सकता है, बेंजोइलेशन, जिसको हम लोग स्पेशल एक नाम देते हैं, ठीक है। आइए उसका नाम शॉर्ट एंड बॉम्ब में आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं एसाइलेशन। अगर एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा दिया जाए तो एसाइलेशन होगा। तो देखो होता क्या है कि एसाइल ग्रुप तुम्हारा यही है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन एसाइल ग्रुप is greater than that of the carbon atom, and there is presence of pi bond which is the weak bond,
this bonded electron will shift towards the oxygen atom, so that this oxygen will get negative charge and carbon will get positive charge. Now this is the lone pair of electron, it will be donated to this carbonyl carbon and there will be formation of the bond. This bond formation takes place. Now due to presence of this positive charge, electronegativity of this nitrogen is further increased, due to which it will withdraw the bonded electron attached on the nitrogen atom. It can withdraw either from this hydrogen or from this hydrogen, so that the positive charge present at this nitrogen will be vanished and H plus is removed. This H plus ion, in the form of H plus ion, it will attack on this oxygen atom, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यह जाकर के अटैक कर देगा। तो अटैक कर देगा तो क्या मिलेगा, अल्कोहलिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पर आपका, ठीक है, और इस तरह से प्रोडक्ट बन करके वह निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको शॉर्टकट में रिएक्शन कराना हो तो कैसे हम लोग कराएंगे। ये तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये तुम्हारा निगेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो इस पॉजिटिव को इस निगेटिव के साथ पकड़ करके निकाल दो, दोनों बाहर हो गया, देखो HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पॉजिटिव को इस नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दो जहां नेगेटिव चार्जेज है, तो पहले से देखो C2H5N था, C2H5N दे दिए, N पर एक H है, N पर एक H दे दिए, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, कार्बोनिल कार्बन है, ये C बचा हुआ, C पर CO ग्रुप है, CH3 है, तो ये COCH3 आके से अटैच हो गया, यानी N इथाइल इथेनामाइड एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एसाइलेशन कहते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या चीज बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हालांकि ये बन गया, लेकिन इस पर जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इस पर कोई ये आपका ये यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव चार्ज पर आसानी से अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं कहलाएगा। ये अटैक कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर, न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कहला जाएगा। तो वही कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर हो जाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। लेकिन यहाँ पर देखो प्राइमरी अमीन रिएक्शन टेक पार्ट कर रहा है, सेकेंडरी अमीन कर रहा है, ठीक है, लेकिन टर्शियरी अमीन का चर्चा नहीं है, टर्शियरी अमीन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, यही वजह है कि वह एसाइलेशन रिएक्शन टर्शियरी अमीन का नहीं होता है। तो यहाँ से आपका रीजनिंग बनता है, व्हाई देयर इज नो एसाइलेशन इन टर्शियरी अमीन, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एट नाइट्रोजन इन अमीन, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, ठीक है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, a stronger base than the amine like pyridine, which removes the HCl so formed and the reaction will shift in forward direction। देखो रिएक्शन हमेशा strong base like pyridine के प्रेजेंस में होता है, क्यों होता है वो देखो, side product is HCl which is acidic in nature, when it is a strong base it will consume form the HCl in the solution, therefore the concentration on right hand side decrease according to Le Chatelier principle, the reaction will shift in forward direction, और इस तरह से रिएक्शन तुम्हारे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो एल्ड ऑफ द एमाइड इन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड विल बी गुड, दैट इज व्हाई pyridine or any other strong base can be used। The tertiary amine lacking only hydrogen on nitrogen, therefore it does not react at all, और टर्शियरी में ही हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके चलते हुए रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। आइए अब जैसे एन या आपका कितना हो गया, एक को साइड चेन ले लो, तो एन इथाइल इथेनामीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, फिर एसाइल हाइलाइट से इसका रिएक्शन करा दीजिए, सेकेंडरी है, तो यही ना तुम्हारा ये प्लस पार्ट हो गया, ये माइनस पार्ट हो गया, इसका ये माइनस पार्ट हो गया, ये प्लस पार्ट हो गया, तो ये HCl को पकड़ के निकाल दो, प्लस माइनस एक साथ हो गया। अब इस प्लस को अटैक करा दो इस नाइट्रोजन पर, देखो ये ग्रुप मिल गया तुम्हारा, एन डाई इथाइल इथेनामाइड तुम्हारा मिल गया। बेस है यहाँ पर पायरिडीन, इट विल कंज्यूम द HCl को कंज्यूम कर देगा। अब देखो अब हम लोग एरोमेटिक में चलते हैं, तो यहाँ एनिलीन ले लिए, बेंजामिन ले लिए या एनिलीन ले लिए, इसका रिएक्शन इथेनोइक अनहाइड्राइड से करा दिए, तो देखो ये प्लस पार्ट हो गया तुम्हारा, ये माइनस पार्ट हो गया। याद रखना हमेशा प्लस माइनस करो के रिएक्शन कराओ, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक होने का चांसेस 0% होता है। अब कहो कि सर यहाँ क्या करें हम लोग, दो जगह हम इस तरह से, तो कोई ये नहीं मान, क्योंकि दोनों एक ही एसिड का पार्ट है, इथेनोइक एसिड का पार्ट है, इथेनोइक अनहाइड्राइड है, ऑक्सीजन पर माइनस होना ही होना है, किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव कर दो, इस पर करो या इस पर करो, बात बराबर है, मतलब कि बॉन्ड हमको यहाँ से ब्रेक करना है। तो इस पॉजिटिव को उठा के नाइट्रोजन पर रख दो, देखो एसाइल ग्रुप आ गया, तो नाइट्रोजन पर एसाइल ग्रुप आ गया, और साइड प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा, CH3O
H, यही ना गया, तो इस H आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा। तो ये कंसेप्ट लगाओगे, कभी भी रिएक्शन लिखने में मिस नहीं करोगे, ठीक है। सिंस देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजोइल ग्रुप, ठीक है, therefore this reaction can be named as benzoylation, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, बेंजोइलेशन, बेंजोइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये अमीन ले लिए, मिथाइल अमीन ले लिए और बेंजाइल ग्रुप हम लोग ले लिए, ठीक है। तो देखो ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, इसका ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट, और पॉजिटिव चार्जेस हम लोग अटैच कर दिए, ठीक है। एन मिथाइल मिथेनामाइड मिल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन कहा जाता है। एनसीईआरटी में वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन रिएक्शन है तो आप तुम्हारे साथ मजबूरी हो जाती है कि इसको तैयार करना पड़ जाएगा, इसको पढ़ना पड़ जाएगा। तो रिएक्शन एनसीईआरटी में है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन ये है क्या, बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। और एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास होगा, चाहे तो वह प्राइमरी अमीन हो या सेकेंडरी अमीन हो, सच है। हाँ, और किसके साथ अमीन जो है से रिएक्शन करेगा या बेंजोइलेशन होगा, तो अल्कोहल के साथ हो सकता है, फिनॉल के साथ हो सकता है, या किसी अमीन के साथ हो सकता है। किसके साथ कराना है, तो बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है। चाहे अल्कोहल के साथ करा दीजिए तो किसका, बेंजोइल क्लोराइड का, तो अभी शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन कहलाएगा। फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड के बीच में रिएक्शन करा दीजिए, वो भी शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन कहलाएगा। अमीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, वो भी शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन कराएगा। किसके साथ कराया जाता है, किसके प्रेजेंस में होता है, तो एक्वस NaOH या KOH के प्रेजेंस में होता है। तो देखो यहाँ एनिलीन है तुम्हारी, ये मिथाइल अमीन है, और यहाँ बेंजोइल क्लोराइड ले लिए, दोनों के बीच में हम रिएक्शन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, एक्वस NaOH या KOH के प्रेजेंस में। तो हम लोग को करस्पॉन्डिंग एन मिथाइल बेंजेनामाइड मिल गया, एमाइड मिल गया आपका, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिल गया। इस रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में देखो ये रिएक्शन नहीं दिया है, लैंग्वेज में लिख के छोड़ दिया है कि आप कंसीडर कीजिए कि मिथाइल अमीन ले रहे हैं और एसिटिक एसिड ले लिया है, उसमें रिएक्शन कराइए, क्या प्रोडक्ट देगा। तो देखो ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, ये कार्बन इसका पॉजिटिव, और OH पर, O पर हम माइनस चार्ज दे दिए हैं, तो यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, H2O बन करके निकल गया। अब यहाँ से ये ग्रुप जो तुम्हारा बच गया, ठीक है, किसके साथ, कार्बन के साथ, ले जाकर के इस नाइट्रोजन पर अटैच कर दो, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर अटैच करोगे तो CO तो तुम्हारा था, CO लिख दिए, CH3 था, CH3 है। एक बार रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। बच्चे घबरा करके करते क्या, उल्टा जोड़ देते हैं, CH3 को जोड़ देते हैं। तो अगर CH3 के साथ जोड़िएगा तो वहाँ कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपका, यही वजह है। और यहाँ कार्बन का बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं होगा, दोनों जगह आपका मिसमैच होगा। तो जब भी जहां से जो बॉन्ड टूटेगा वहीं से जोड़ना है। क्योंकि आप यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये कार्बन से ही अटैच करना होगा आपको N पर। तो देखो कार्बन पर क्या है, CO था, CO दे दिए, और इस CO के साथ क्या बच रहा है, CH3 या CH3 अटैच कर दिए, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया आपका। अब आइए कार्बाइल अमीन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो करते क्या है कि हम लोग एलिफैटिक ले लीजिए या एरोमेटिक ले लीजिए, और दोनों का प्राइमरी केस होना चाहिए, प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन ले लिए, ठीक है। और उसका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ करा दिए, अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, अल्कोहलिक KOH के साथ। इथेनोलिक या अल्कोहलिक एक ही वर्ड होता है, मतलब कि KOH को अल्कोहल में डाल देंगे, और उसमें भी कौन सा अल्कोहल होना चाहिए, इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में हल्का सा वार्म कर दीजिए, तो बहुत गंदा स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा, और वह गंदा स्मेल किसका होता है, इथाइल आइसोसाइनाइड का होता है, जिसे हम लोग कार्बाइल अमीन कहते हैं। तो यही तुम्हारा कार्बाइल अमीन हो गया। कौन है ये तुम्हारा कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, या इसी को कार्बाइल अमीन कहते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया आपका, कार्बाइल अमीन रिएक्शन नाम पड़ गया इसका, ठीक है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन फिर से एक बार, प्राइमरी अमीन हम लोग ले लिए, चाहे वह एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। अब उसको हम लोग ट्रीट कर दिए क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और NaOH, एंड इट इज वार्म। A foul smelling gas is obtained ना, known as इथाइल आइसोसाइनाइड, और ये कार्बाइल अमीन। कोई जरूरी नहीं है कि इथाइल आइसोसाइनाइड मिले, मिथाइल हम अमीन लेते तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता आपको, ठीक है, मतलब कार्बाइल अमीन। और किसके चलते पहचाना जाता है, तो ये फॉल स्मेल, गंदे स्मेल के चलते यह गैस पहचान लिया जाता है। अगर हम लोग एरोमेटिक अमीन ले लिए यानी एनिलीन ले लिए, तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा दीजिए, फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा ये आपको, ठीक है। इसको भी हम लोग कार्बाइल अमीन कह दिए, एरोमेटिक कार्बाइल अमीन है ये।
तो इस रिएक्शन को कार्बाइलामीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आइए रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन जो होता है डिफरेंट कंडीशन में होता है। मतलब कि अगर प्राइमरी अमीन है तो कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, सेकेंडरी अमीन है तो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, और टर्शियरी अमीन तो कमाल ही करता है। आइए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो व्हेन द प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विद द नाइट्रस एसिड, इट फॉर्म्स एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो अगर हम लोग देखो रिएक्शन कैसे होता है, ये रिएक्शन आप डाइएजोटाइजेशन में पढ़ चुके हैं। कहाँ? सैंडमेयर रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। सेकेंड बुक के पहला चैप्टर में था डाइएजोटाइजेशन, ये क्या सैंडमेयर रिएक्शन, वहाँ उसका पहला स्टेप था डाइएजोटाइजेशन सैंडमेयर का, वही रिएक्शन तो है ये। तो हम लोग नाइट्रस एसिड इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, देयरफॉर इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, therefore it is prepared in C2, for which sodium nitrite and conc HCl is taken. When the sodium nitrite and HCl will combine, they will liberate HCl and sodium chloride. तो यहीं पर नाइट्रस एसिड ऑब्टेन्ड हो जाता है। अब रिएक्शन लिखना है तो देखो टेक्निक में बताया था वहां उस चैप्टर में, फिर से एक बार तुम लोगों को रिकॉल करा देता हूं। RNH2 हो गया। अब हमको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराना है, तो यहाँ O ले लो, डबल बॉन्ड N हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर N हो गया और ये हो गया तुम्हारा OH। ठीक है, फिर तुम्हारा HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, HCl यहाँ लिख दो। तो देखो यहाँ से पकड़ करके H2O काट करके निकाल दो, यहाँ से तुम H2O काट करके निकाल दो। तो R सिंगल बॉन्ड N, तो देखो R सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, फिर क्या आ गया? डबल बॉन्ड N, तो देखो डबल बॉन्ड इसमें छुपा हुआ है N। ठीक है, इसके बाद क्या मिल रहा है? Cl, तो Cl लगा हुआ H2O निकल गया ये आपका। लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ड्राई कंडीशन में ये एक्सप्लोड कर जाता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर का रेंज याद रखना जरूरी है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ता है तो एक्सप्लोड कर जाएगा, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। इसलिए आइस कोल्ड टेम्परेचर देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया, लेकिन बेंजीन कह रहे हैं, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया। अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये अल्कोहल में बदल जाएगा। मतलब कि ड्राई कंडीशन में रखेंगे तो एक्सप्लोड कर जाएगा, वो वाटर के साथ रखेंगे तो अल्कोहल बना देगा। तो प्योर रखा जाता है इसको, सिर्फ किया क्या जाता है कि टेम्परेचर डाउन करके इसको रखा जाता है, और ऐसे तुरंत ये तो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना ही करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं। Aromatic amines reacts with nitrous acid at low temperature to form benzene diazonium salt, a very important class of compound used for the synthesis of variety of aromatic compounds. अब इससे बहुत ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब देखिए एनिलीन ले लिए और नाइट्रस एसिड बन गया, तो इसको भी उसी तरह से काटना है। नाइट्रस एसिड का O इधर ले लो, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक बार रिकॉल करो। नाइट्रोजन हो गया और ये O हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, नाइट्रस एसिड बन गया। अब हम लोग किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? कॉन्क HCl। HCl की मात्रा ज़्यादा है ना, इसके साथ कंज्यूम होने के बाद भी HCl प्रेजेंट रहेगा। यहाँ से तुम H2O निकाल दो, ठीक है, और यहाँ से भी H2O निकाल दो। ये निकल गया तुम्हारा, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड N आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड N, क्लोराइड लग गया, क्लोराइड लग गया। ठीक है, बाद में फिर इसका सेवरल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोग देखेंगे। साइड प्रोडक्ट यहाँ से Na और Cl निकल गया, यही NaCl यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वो आ जाइए। अब अगर सेकेंडरी अमीन लेते हैं और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एन नाइट्रोसाइल, एक मार्कर मेरा दूसरा कलर का लेना पड़ जाएगा, छोड़ो, बार बार मार्कर क्यों चेंज करूं मैं। तो यहाँ पर एन नाइट्रो सोडियम मिथाइल अमीन येलो ऑयल बनता है। ठीक है, उसी तरह से इसका रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड बनेगा। नाइट्रस एसिड में रिएक्शन यहाँ पर कैसे होगा, मार्कर दूसरे कलर का लेना मजबूरी है, लेकर के इसको भी समझा देता हूँ। हाँ देखो, यही ना तुम्हारा सेकेंडरी अमीन है, यहाँ एक R ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ दूसरा R ग्रुप लगा हुआ है, ले लिए। ठीक है, यहाँ पर एक H तुम्हारा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड इधर ऐसे लिख दो। ठीक है, डबल सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया, O हो गया। ठीक है, यहाँ से तुम काट करके निकाल दो क्या, H2O। देखो ये H2O निकल गया।
तो नाइट्रोजन बच गया। नाइट्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो देखो नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यही येलो कलर का होता है ना, येलो ऑयल जिसको कहते हैं N नाइट्रो सोडियम मिथाइल अमीन कहलाता है। ठीक है, तो N नाइट्रोसो है, नॉट सोडियम, N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, ये येलो ऑयल है, ये बन गया। कैसे रिएक्शन हुआ बेटा, देखो यहाँ पर मैं समझा दिया हूँ। उसी तरह से ये सेकेंडरी अमीन है। फर्क इतना है कि एक एलिफेटिक ग्रुप लगा हुआ है, एक एरोमेटिक ग्रुप है। HCl नाइट्रस से सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करेगा, नाइट्रस एसिड बनेगा। फिर इसका रिएक्शन उसी तरह से कर देंगे हम लोग, HO ले लेंगे, नाइट्रोजन इधर है, नाइट्रोजन इधर दे दिए, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O दे दिए, यहाँ से पकड़ करके वाटर निकाल दिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ देखो N लग रहा है, कैसे बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O, ये भी एक येलो ऑयल है, N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन कहलाएगा ये। ठीक है, अब आइए रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेंजीन को हम लोग ये अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। आपको एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड का दूसरा नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या नाम है इसका, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, किसका, तो आपका नाम हो गया एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। अभी तक आपका बोर्ड में नहीं पूछा है, लेकिन फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, मार्कर चेंज करने दो जी, इसका कलर है कि पता नहीं चलता है, उनको व्हाइट ले लेने दीजिए, व्हाइट पता चल जाता है इसमें किधर है। तो देखो ये अमीन हो गया, प्राइमरी अमीन है, ये तुम्हारा प्लस पार्ट हो गया, ये माइनस पार्ट हो गया। ये क्लोराइड है, नाइट्रोस, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया, ये माइनस पार्ट है, ऑटोमेटिक है, तुम्हारा प्लस पार्ट हो गया। अब अपोजिट चार्जेज का जोड़ दो, देखो HCl निकल गया, साइड प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ सल्फर है, सल्फर के साथ नाइट्रोजन, सल्फर के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन पर इथाइल ग्रुप, इस पर एक इथाइल ग्रुप लग गया। दिस नाइट्रोजन इज अगेन containing one hydrogen. It is in acidic nature. Why it is acidic? Because it is present with this nitrogen atom, and nitrogen is attached with this sulfur. Since the electronegativity of oxygen attached to this sulfur is higher than that of the sulfur, consequently this pi bond will shift toward this oxygen atom, so that it will get positive charge and sulfur will get negative charge. Now the electronegativity of sulfur will increase, so that it will attract the bonded electron from the nitrogen atom. Now electron density will decrease at this nitrogen atom, consequently it will withdraw bonded electron towards itself from the hydrogen atom, so that H plus N is removing here. That is why this hydrogen is what, acidic in nature. Since it is acidic, therefore it is soluble in NaOH solution, इसीलिए soluble है। और इस तरह से हम लोग पहचान लेते हैं कि ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन है। But see, in the case of the secondary amine, there is presence of only one hydrogen. When HCl is removed to form this compound, now there is no acidic hydrogen at this compound, therefore this compound is not acidic in nature, consequently it is insoluble in NaOH solution, और NaOH solution में insoluble हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है NaOH में घुल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि सेकेंडरी अमीन है। और टर्शियरी अमीन में क्या है, आपका एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो HCl यहाँ से निकलेगा ही नहीं, मतलब टर्शियरी अमीन will not react with the benzene sulfonyl chloride. That is, we can say that it is tertiary. It is only due to the lack of hydrogen atom at nitrogen in the case of the tertiary amine. ठीक है, बस आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल पढ़ाऊंगा। इतना जान जाइए कि एनिलीन में NH2 ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों है, एंड रिंग एक्टिवेटिंग है। क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग एज इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग, while electron density is increasing on ortho and para position, therefore it is ortho para directing. ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। अटेंडेंस लेने दीजिए, इसके बाद आप जाइएगा, क्लास छोड़िएगा। देख लीजिए अपना अपना अटेंडेंस। अजीत, अमित, अनंत प्रकाश, अनुराग, अर्पणा,
दीक्षा, कुमार गौरव, मनीष राज, पल्लवी, प्रियंका कुमारी, प्रियांशु सिन्हा, रवि कुमार, शफाक, शाम्भवी, शिल्पी, विकास गिरी, अलका कुमारी, अंकित रंजन, अर्चना। रिया का अटेंडेंस नहीं बना। रिया आज क्लास की है कि नहीं? शिल्पी आई थी सर। आई थी, क्लास की थी। चलो रिया का बना दी। और कोई ऐसा बच्चा जो अटेंडेंस ये क्या कहा जाता है, क्लास किया अटेंडेंस नहीं हुआ हो उसका? चलो ठीक है, तो अटेंडेंस रिया का बन गया है, इसका मतलब क्लास छोड़कर भाग गई होगी। चलो ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले लिया हूँ, इसको डाउनलोड कर देता हूँ। 30 एक 12th का है, 12th यहाँ लिखने दो। और तुम लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, कंफर्म हो गया है, ऑनलाइन होगा। और उसमें भी तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टाइम से तुम लोग को ये मिल जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स रहेगा। अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट ले लेता है तो दूसरा बच्चा मिस कर जाएगा, तो दूसरे को परेशानी नहीं हो। जैसे पिछले बार प्रियांशु का, अनंत प्रकाश का हुआ था परेशानी। दो कुछ बच्चे जो है से अटेम्प्ट कर लिए थे, उन लोग को भी पता नहीं था कि हम सबमिट किए कि नहीं किए, इस वजह से अटेम्प्ट हो गया था। तो इस बार डबल अटेम्प्ट नहीं लेना है आप लोगों को, ताकि दूसरे बच्चों को नुकसान नहीं हो। हाफ ईयरली एग्जाम है आपका ये। कहाँ जा रहा है अटेंडेंस मेरा ये? ठीक है बेटा जी, जाइए आप लोग। Thank you, sir. थैंक यू सर। और अनंत प्रकाश और ये प्रियांशु, जो तुम लोग मेल किए थे, मेल को मैं खोल के देखा था, खुला नहीं, खुलता नहीं है मेल करने से, ठीक है, क्योंकि वो तो लिंक रहता है पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल, उसके बाद वो खुद हट जाता है, कहीं उसको भेजो। तो खुला नहीं, इसलिए मार्क्स तुम लोग को नहीं चढ़ा पाया था। सर हाँ पल्लवी बोलो। सर कल जरूरी है, 2 बजे नहीं कर सकते हैं? 2 बजे क्लास? नहीं सर, कल हम लोग को आना है ना वहाँ अच्छा तुम साइन लोग, करने के लिए। अच्छा कल तुम लोग के यहाँ आना है? यस सर। तो आना है तो फिर क्लास नहीं लेंगे और क्या। कल संडे सर। ओ कल संडे है, हाँ तो फिर चिंता नहीं, कल तो सर संडे। वो बोले थे मैं तो कि है कि 1 बजे तक ही आना है, हम 1 बजे तक कैसे आएंगे? ओ हाँ, ये भी बात तो सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा सर से बात कर लेगी। तो सर वो सर बहुत जहानाबाद से तो ट्रेन है जी, डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के भोरे भोरे पहुंच जाओ। और 4 बजे का सर। हाँ तो 4 बजे आ जाओ। 4 ठीक है, 4 बजे आ जाना और साइन करके चले जाना। ठीक सर। दिक्कत होगा तो फिर शफक के साथ रुक जाना 1 आध घंटा। ठीक सर। विकास है सर। ये जी विकास, ऐसे उसको मटेरियल्स जो भेजा हूँ उसको भेज देना, वो भी पढ़े। और उसको जरूर भेजाना, फैजान को। क्लास नहीं करता लड़का, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, अभी से ही बिजनेस में उतर गया है तो क्या पढ़ेगा। ठीक है बेटा, फैमिली जाइए। प्रॉब्लम है सर। अमीन 3 अमीन 4 हो जाएगा ना ये?